Hello and welcome to this episode. Today we have Anuj Goyal as a guest. He was my senior in college. He had more experience in entrepreneurship even before I entered the college. And so I'll tell you a very basic brief so that you have some context around what is happening in the entire conversation before this. Anuj started a company in his first year of college, which was Junior Matrix, along with a couple of people, and then moved on to the next company after certain issues there. You'll understand what happened, and everything, which was Grubby. Things then moved forward there. He worked on it for 2 years, then moved forward to his third venture, the venture which is currently running, the dark store. The dark store currently sells t-shirts, hoodies, and other clothing items which are completely black. I have a cold, so you might have to bear with this, but the conversation is definitely worth it. Why is it worth it? Because number one, learning from struggles and failures is something you cannot get in a lot of places. Secondly, the resilience of the fact that you move, you see multiple ventures and you see you've done multiple stints of entrepreneurship. It teaches you more than anything else. And most importantly, Anuj, as a person as well, is very humble to explain a lot of things which would have taken you years to figure out otherwise. So yeah, this episode essentially is about the spirit of entrepreneurship more than anything else. We're not talking about numbers as much. We're not talking about fresh new ideas. You might find a good idea here somewhere in the video, but that's on you to receive. Secondly, you learn so much about how the importance of building processes and the importance of co-founders, the importance of good co-founders, a good team, and the fact that how when ventures fall, lots of things happen. And in entrepreneurship, this is inevitable. If you're starting something, it is bound to end. It's about how well do you get it to fly as much as possible. Also, you'll realize some very interesting things about competition and your focus on competition. So this overall is a very packed up episode. Uh, let's hope you get some good value out of it. Let's get right into the conversation. Hmm. तो अभी क्या आइडिया क्या है लाइक विद द टी शर्ट्स एंड ऑल? इट्स लाइक कि द डार्क स्टोर थोड़ा सा ब्लैक पेरिस से इन्फ्लुएंस्ड है। यूरोपियन ब्रांड है ब्लैक पेरिस करके। काफी प्रीमियम ब्रांड है, मतलब उसकी एक टी शर्ट अराउंड 12 से 13 हजार की आती है। ठीक है। तो वो ब्लैक पेरिस ब्रांड जो है उसकी एक थीम है कि वो सिर्फ ब्लैक कलर के अपने यूथ के प्रोडक्ट्स बेचता है। ठीक है। तो उसी से इंस्पायर्ड होके हमने ब्रांड को सोचा था कि हम अपना द डार्क स्टोर बनाएंगे, कि सारे प्रोडक्ट्स हम उसमें ब्लैक के इंट्रोड्यूस करेंगे, ओनली ब्लैक कलर। उसमें हम चाहे फॉर्मल्स लेके आए, कैजुअल्स लेके आए, This या is फिर the darkstore.in, right? हम्म So, what are you doing about this? You are sourcing these t-shirts from somewhere, and hoodies and all from somewhere. नो, वी हैव मैन्युफैक्चरर्स इन नोएडा इटसेल्फ। Okay. कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मैं नोएडा में रिसोर्स करता हूँ, कुछ के लिए मेरा होम टाउन में मैं देहरादून में रिसोर्स करता हूँ। Hmm. कुछ अभी जैसे लॉन्च नहीं हुए हैं। अभी ये वेबसाइट भी अंडर डेवलपमेंट है, काफ़ी चीज़ें इसमें अभी ऐड ऑन्स होनी है। So, पहले इट्स oh. वाज जस्ट, आई जस्ट स्टार्टेड विद ओनली टी शर्ट्स ओनली, जैसे ज़्यादातर Mhm. फैशन ब्रांड्स करते हैं। बट अब नाउ हम अपने इसके यूज़ बढ़ाते जा So, टेक से उठ के रहे हैं। एकदम से फैशन में यार मेरा थोड़ा सा मन प्रोडक्ट बेस्ड को था हमेशा से ना। सर्विस बेस्ड स्टार्टअप मैं पहले ही दो कर चुका हूँ। ठीक है, एक अच्छा चला, एक फेल हुआ, फिर उसके बाद ग्रबी का अभी क्या था? ग्रबी इज ऑल्सो सर्विस बेस्ड। ग्रबी, और उससे उसके दूसरा? उससे पहले मैं फर्स्ट ईयर में जूनियर मैट्रिक्स शुरू किया था, जिससे मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हुई थी। हम्म। तो एक बार एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सर। हाँ। सो थोड़ा कहाँ सा से शुरू करें? फ्रॉम द स्टार्ट शुरू शुरू करते हैं। ठीक है। तो
एक देहरादून के लौंडे से आप बात कर रहे हो। थोड़ा यूनिक हमारा इंट्रो। इसके बाद एक एपिसोड और पेंडिंग चल रहा है कि एक और दूसरे देहरादून के लौंडे से वो भी फैशन में ही है। फैशन में फैशन काफी अच्छी इंडस्ट्री है, रिजल्ट्स अच्छे दे रही है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ ब्रांड लाइक एन H&M और समथिंग लाइक दैट। अगर आप कुछ छोटा मोटा भी ब्रिंग चेंज लेके आ रहे हो ना यूथ के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए भी, तो भी आपको काफी अच्छा सक्सेस और रिजल्ट्स मिल जाते हैं। चेंज किस सेंस में? चेंज इन लाइक ऑफ सेंस में कि फैब्रिक में ले आओ कुछ नया, हम्म कंफर्ट दे दो इस लेवल का, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी कर दो। जैसे आजकल वो चल रहा है कि नॉन वॉशेबल क्लोथ्स, कि कभी गंदे ही हम्म नहीं होंगे। ठीक है, कॉफी गिर जाए तुम्हारे हम्म पे, केचप गिर जाए, वो अपने आप साफ हो जाते हैं, या हल्का सा कपड़ा मार के कुछ ऐसा कर दो यूनिक। या फिर कुछ ट्रेंडिंग ले आओ जो वायरल कर दो तुम। ये पॉइंट ऑफ सेल का कंसेप्ट हो गया वो तो। हम्म। ठीक है। तो ये है। चलो पहले इंट्रो से शुरू करते हैं, नहीं तो इस डायरेक्शन में तो बढ़ते चले जाएंगे। नहीं करना तो है। आई एम फ्रॉम देहरादून। मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी पहले बहुत एक्सप्लोर किया था। मैं बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ, शुरुआत से ही बहुत क्रिएटिव रहा हूँ। स्कूल में मेरे को मिस्टर क्रिएटिव का अवार्ड भी मिला था, क्योंकि हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट्स बना देता था जो काफ़ी प्रेजेंटेबल होते थे। तो इसके बाद मैंने, अब मेरे पास एक सिचुएशन आ गई थी करियर में आफ्टर डूइंग 12th फ्रॉम PCM। पीसीएम तो मैंने ऐसे ही चुन ली थी दोस्तों के कहने पे। और मेरे को पर्टिकुलरली मैथ्स बहुत पसंद थी, तो भी इस वजह से चुन ली थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे पास सिचुएशन आ गई कि मैं हूँ क्रिएटिव, ठीक है, और मेरे को करना भी कुछ ऐसा है जो मेरे फैमिली अफोर्ड कर सके, नॉट टू एक्सपेंसिव एजुकेशन। ठीक है, जेई मैंने दिया नहीं, क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। क्योंकि मम्मी पापा को था चश्मा पहले से लगा हुआ है, और 4 साल कंप्यूटर के आगे रहा तो और मोटा हो जाएगा। इन दी एंड चलो आगे आगे बताओ। ठीक है। डेस्टिनी गोल्स। फिर अब बहुत सारे कंफ्यूजन में रिसर्च करी मैंने कि आई शुड बी एन एनिमेटर, की जो एनिमेशंस का कोर्स सीखे, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, क्योंकि उसमें भी क्रिएटिविटी आपकी इनपुट आती है। ठीक है। बट उसमें फिर मैंने एक्सप्लोर किया, कोई काउंसलिंग करने को नहीं था, 2-3 लोग एक्सपीरियंस थे उस करियर में। उन्होंने कहा कि इट विल बी अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद एक लेवल पे अच्छा कमाते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में तो आपकी सैलरी 10-15 हज़ार रुपये ही रहती है। तो वो चैलेंज आया, मैंने कहा यार ये तो नहीं चाहिए, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाऊंगा। ठीक है, तो उसे स्विच करा। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो फैशन में जाते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के लिए सोचा, निफ्ट इज टू मच एक्सपेंसिव, और उसमें भी फिर में सेम का क्राइटेरिया आ गया कि प्लेसमेंट के बाद इंटर्नशिप मिलती है आपको 4 साल के बाद, उसमें भी इतनी आपको पे स्केल नहीं मिलती। फिर मैंने स्पेशली सर्च करा बहुत ढूंढने के बाद कि भाई किसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा एकदम 4 साल के बाद, या पहले ही 3 साल में मिल जाए। तो एक ही चीज दिखाई थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो कैसे भी जिद करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चुनी। और फिर बहुत सारे कॉलेज ढूंढे, पहले चितकारा ढूंढ रहा था, फिर सीयू ढूंढा, फिर हम फाइनली ये एक काम बीप कर देंगे। चित्कारा हाँ। नहीं दूसरा। ठीक है। तो फिर फाइनली कंपेज, अरे यार आई वांटेड चितकारा। ठीक है, बट पॉइंट क्या हुआ कि अब मेरे पापा के पास ना दोनों के एजेंट के नंबर थे। अब चितकारा वाले ने रिस्पॉन्स नहीं करा टाइमली। आज वो कोसते हैं कि कहते हैं यार शायद काश, काश वो उस वाले ने रिस्पॉन्स कर दिया होता। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद अब सीईओ का रिस्पॉन्स आ गया था जल्दी, एंड आई गॉट स्कॉलरशिप आल्सो फ्रॉम देयर। तो मेन पॉजिटिव तो पापा को हो गया था, स्कॉलरशिप मिल गई है सीयू साइड एग्जाम देने के बाद। ठीक है, हाँ, तो फिर गो अहेड। फिर वहीं पे एडमिशन हुआ। फिर 2 साल तो वी वर फ्रॉम कोविड बैच, तो काफी तो घर वो पे ही तो बिताया। तो आपको बताओ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई अभी। अब बात हो हम्म। ही रही है सीयू की तो मेरा मेरी टीम में कोई था। कोई एमबीए का एग्जाम देने गए थे वो हाँ। एंड सीयू ब्रोशर बेच रहा था तो दे रहा था सारे स्टूडेंट्स को एमबीए वाले एंड वो करते करते दिस इज नॉट कंसेंसुअल ये हम्म। देखो दिस इज एन एआई जनरेटेड इमेज। एहे साइड में लोगों राम। ने लिख भी दिया बहुत कुछ लिख भी दिया मेडॉक के नाम पे मेरे नाम पे भाई ये ड्रेस तक नहीं है मेरे पास दिस इज सीयू।
So anybody who gets this, ये मेरे ही फोटो नहीं है। ये तो चलता है हाँ भाई। कंटिन्यू। ये तो 4 साल यही चला है। आगे भी यही चलेगा। तो फिर उसके बाद सीयू की जर्नी शुरू हुई, कोविड बैच शुरू हुआ। तो अब हर इंजीनियर की लाइफ का ना एक सेंटर्ड गोल होता है। अब मैंने स्ट्रैटेजी बनानी सोची कि अब मैं करूं कैसे। ठीक है। हाँ तो फिर एक बहुत ही उस टाइम के अच्छे इन्फ्लुएंसर थे इंजीनियर्स के लिए, वो थे अमन दर्तवाल नाम के। हाँ। ठीक है। जो उसको सब फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली। ठीक है, तो हम्म मैं भी था। तो उसकी एक वीडियो देखी थी, मेरा और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जो स्कूल फ्रेंड था। तो ही वाज डूइंग engineering same as like me, but from the petroleum university देहरादून, he was doing हम्म local। ठीक है, बट दोनों का ही स्टडी घर से चल रही थी। तो अपन दोनों साथ में पढ़ने लगे कि यार कुछ फोड़ना तो है लाइफ में। ठीक है, तो साथ में पढ़ते हैं। तो पढ़ते पढ़ते अपन ने वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ना शुरू करा। वेब डी पढ़ी पूरी। अब समझ में आया कि अब इंटर्नशिप क्रैक से क्रैक करें, तो जी सॉक ऑप्शन दिखा। फिर दिखा कि अमन दत्तवाल की वीडियोस के इंस्पायर्ड में कि फाइंड इट आउट अ प्रॉब्लम एंड मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दैट, जो रियल टाइम प्रॉब्लम हो। और हम्म क्योंकि मैं क्लास 7 से मैं ट्यूशंस पढ़ाता आ रहा था बच्चों को। ठीक है, एजुकेशन से मैं काफ़ी रिलेटेबल था। तो मैंने सोचा, और मेरा फ्रेंड भी एक आश्रम वगैरह में एजुकेशन ही देता था। वो फ्री में देता था, मैं थोड़ा पैसों में देता था, बढ़िया नेचर में। हम्म तो मेरे पास अराउंड 12th क्लास में 100 बच्चों का बैच हो गया था, जो टेरेस पे जिनको मैं पढ़ाता था। तो फिर मेरे को कनेक्टिविटी पता थी। मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो खुद से फेस किया और जो मैंने देखा भी, वो ये था कि बच्चों को करियर काउंसलिंग नहीं मिलती इजीली। ठीक है, हम्म अगर काउंसलर वो ढूंढने जाए तो उन्हें 30 से 40 साल का कोई बुढ़ा मिलेगा, जिससे वो ना हम्म अपनी रियल टाइम जो उनके माइंड के थॉट्स हैं वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म उनकी सोच और उनकी सोच आपस में नहीं मिलती है। हम्म तो आई वांटेड समथिंग कि कुछ ऐसे बंदे हों जिनसे 12th क्लास के बंदे, 10th क्लास के बच्चे ना डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए इजीली, और उनसे अपनी हम्म प्रॉब्लम शेयर कर पाए, अपना पर्सपेक्टिव और उनका पर्सपेक्टिव ना वो बंदा समझ पाए। ठीक है, तो वो समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स में जो बेस्ट प्लेयर्स थे और एनआईएफटी या कोई भी करियर पर्सपेक्टिव हो, उसको कनेक्ट कर दिया एक 10th क्लास के बच्चे के साथ या 12th, और हम्म 1-on-1 काउंसलिंग सेशन हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो अचीवर्स थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई टू अर्न, एंड हम्म बाकी स्टूडेंट्स के लिए बन गई टू गेन द नॉलेज कि इस करियर में होगा क्या। और मैंने हम्म एक सर्कुलम बना दिया था कि उनको काउंसिल करना कैसे, पहले उनसे ये क्वेश्चंस पूछो ताकि उनके मन का निकालो। ठीक है, उनसे ये हम्म बातें शेयर करो अपनी, फिर और वो अपनी बातें शेयर करेंगे। उसके बाद उन्हें करियर के बारे में बताओ कि इस पर्टिकुलर करियर में क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है, कितने लेवल पे पढ़ना पड़ता है, और अगर आप ब्रोक हो जाओ तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज बचती हैं प्लान बी के लिए। ठीक है, हम्म और प्लान बी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों उसके बारे में इतना पर्सपेक्टिव नहीं रखना भी चाहिए। ठीक है, हम्म तो ये सारी चीज़ें मैंने अलाइन कर दी थी, एंड इट वाज गुड रिस्पॉन्स। हमने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट शुरू कर दिया था उस पे। फिर हम्म भी हमें कुछ और एक्सटेंड भी करना था, तो हम लेके आए थे एनिमेटेड कोर्सेज ताकि बच्चे स्किल सीख सकें। फिर मेरा एक हम्म विजन बन गया था कि बच्चे ना कार्टून से बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं चीज़ें। हम्म फॉर एग्जाम्पल, अगर नोबिता दिखा रहे हैं कि हम कि वो इज शेयरिंग समथिंग विद हिज पेरेंट्स डेली नोट, तो वो बच्चे भी अडेप्ट कर लेंगे, वो भी अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करने लगेंगे। तो हम्म चैलेंज शुरू हो गया था कि हम अब एनिमेटेड कोर्सेज बनाना है टू गेन स्किल्स फॉर द किड्स। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, एंड दैट इज वाई, बिकॉज एनिमेटेड कंटेंट बनाना इट्स नॉट फ्री। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट्स वेरी बहुत एक्सपेंसिव। टाइम टेकिंग, बहुत एफर्ट हाँ, लगता है उसमें। आज मैंने अभी लेटेस्टली ही देखा है 3-4 दिन पहले अबाउट अलक पांडे सर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन द एनिमे, कि अब मैं एनिमे के थ्रू हाँ भी मैं हाँ साइंस सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ। दैट इज अ वेरी लॉन्ग एफर्ट, उन्होंने काफी टाइम का एफर्ट है उनका जो आज पूरा हुआ है। तो उस टाइम पे हम्म। हम तो बिल्कुल ही स्टेज ए पे थे, स्टेज ए भी नहीं वो कहूँगा, भी माइनस। इट्स अ वेरी पायलट सा प्रोजेक्ट, वो भी पूरा हाँ, हुआ कैसा लग रहा है। वही इट्स वही अ प्रेजेंटेशन, कंटेंट प्लस क्रिएशन, सब चीजें एक साथ आ जाती है। वही प्रोडक्शन स्क्रिप्टिंग से लेके चाहिए, हर एक चीज। और एक टीचर का आइडिया भी चाहिए उसमें, कहाँ वही इनपुट्स डालने हैं, फिर वही उसके वही बाद वही सब चीज़। तो वो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा इंटेंसिव काम है वो। एफर्ट। तो 6 मंथ्स ट्राई किया,
बट उतना वर्कआउट नहीं किया। तो फिर एक्चुअली ब्रोकन हो गया फिर मैं काफ़ी ज़्यादा कि कैसे करूँगा इन सब चीज़ों को फॉलो अप करते 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 करते। हम्म और पॉइंट है कि एक स्टेज ऐसी आती है फिर आपके एग्जाम्स आने लग जाते हैं, कॉलेज एग्जाम्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, पार्टनर्स भी आपके वो हो जाते हैं कि भाई मेरे भी एग्जाम्स हैं, सब चीज़ें हैं। ठीक हम्म है, भले ही मैंने 21 लोगों की टीम इसके लिए अपॉइंट this कर was रखी थी। this was the entire concept of junior matrix, right? या इट वाज Make- फर्स्टली इट वाज करियर सी कोच। हाँ You would be asking why career C coach? I have had a name career coach, ठीक है, बट हम्म डोमेन नहीं मिला उस वक्त तो करियर सी कोच रख दिया। एससीओ की 0% नॉलेज नहीं थी। एससीओ होता क्या है, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था। ठीक है, हाँ तो करियर सी कोच रख दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ा कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, हमें शेयर करने पड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा। तो सब पढ़ाई 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 करी जब उसके बारे में मैंने, तब जाके पता चला कि हाँ ऐसे होता है। तो फिर मैं आई वी रीनेम्ड तो एंड इसमें रीब्रांडेड। क्या you were creating, पहले you were doing career counseling वाला पूरा सीन, then you went into हाँ content creation वाला पूरा aspect of things कि AR लेवल पे लेके जाएंगे, VR लेवल पे लेके जाएंगे, वैसा? हाँ, मैं लेट मी शो यू समथिंग। अब तो लाइव नहीं है बट मे बी मेरे पास एसेट्स पड़े होंगे। हम्म, क्योंकि एनिमेशन इन itself is very very expensive, like if you think of even major anime अभी जो चल रहे हैं, it हम्म, always has some core thing in it. So for example Full Metal Alchemist हो, it has a lot of ऐसा सेवन सिंस वाला पूरा सीन सिखा देते, मतलब आ जाता है उसके अंदर पूरा आ जाता है। तो उसका भी प्रोडक्शन इज सुपर एक्सपेंसिव। सो व्हेन यू टॉक अबाउट अलक पांडे फॉर एग्जांपल डूइंग दिस फॉर साइंसेस फॉर हम्म। क्लास 10th का सिलेबस, इट इज आई हैव नो आइडिया हाउ इट्स गोइंग टू रोल आउट। नहीं, उनका प्रीमियर मैंने जो देखा इट वाज वेरी नाइस। ठीक है, प्रीमियर बढ़िया था बट प्रीमियर वाज ऐसा हाँ 10 सेकंड का क्लिप। हाँ वो है, बट अगर उस प्रोडक्टिविटी लेवल पे उन्होंने अचीव कर लिया, देखो दे हैव द कैपिटल एंड दे हैव द मैन पावर, बोथ एग्जैक्टली द दैट्स थिंग। द होल थिंग, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, they can achieve that, and if they have given that quality to India ना, then बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी। वही, बस इट शुड क्योंकि नॉट वो बी, इट शुड नॉट बी clear that it's trying to teach, is what I think. इट्स अ डिफरेंट मेथड टू टीच। सी Yeah, मेरे, but मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको एक hmm, सेकेंड, उससे आपको थोड़ा सा और आइडिया होगा। मेरे लोकल पे होस्टेड है, बस वो पड़ा हुआ है। बाकी डोमेन भी अवेलेबल है, अभी ऐसा कुछ है नहीं उसका कुछ। hmm, अभी कुछ महीनों पहले ही एक्सपायर हुआ था, मेरे को आया था नोटिफिकेशन, मैंने रिमूव किया नहीं क्योंकि नो वन वाज वर्किंग ऑन इट, तो व्हाई शुड आई। yeah. So, what do you think actually went wrong with Junior Matrix? It is more like it was my give up on it. Hmm, Okay, because the process was getting long and I'm not finding the solution for it. Maybe I would have done because उस टाइम पे एक तो ये है कि मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, hmm, आई टू अर्न मोर मनी, मैंने करियर कोचिंग से लेके जो मतलब करियर काउंसलिंग था मेरा पहला पर्सपेक्टिव जिससे शुरू हुआ था ये। ठीक है, उससे भटक के मैंने स्किल कोर्सेज बेचने शुरू कर दिए, जस्ट लाइक अदर हाँ, एडटेक्स वर डूइंग। ठीक हाँ, है, अलग, बस मेथड अलग था बट कर तो वही रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो डायरेक्शन चेंज करना और फिर उस चैलेंज को ना फेस करवाना, दैट वाज अ फेलियर। तो उसके बाद ये नहीं किया मैंने गिव अप करके कि मैं थोड़ा सा बैकअप पुश कर लूँ अपने आप को और उसी करियर काउंसलिंग में आगे बढ़ता हुआ जाऊँ। ठीक है, hmm, वो मैंने ट्राई नहीं किया और वो भी इस वजह से मेरे को थोड़ा फेस होने लगा था क्योंकि जो मेरा वो थे क्या कहते हैं काउंसलर्स थे, वो भी धीरे धीरे बैक ऑफ कर रहे थे, तो मैं कभी कभी वो नहीं कर पा रहा था कि मैं उसकी जगह एकदम रिप्लेसमेंट लेके आ पा रहा हूँ। hmm, क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट जो स्लॉट बना था सारे का, उनमें से ज्यादातर मेरे कनेक्शंस थे पर्सनल एंड पे। क्योंकि आप स्कूल से निकले हो, मल्टीपल कॉलेजेस में जाते हो, तो पता है कि हाँ मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं कॉमर्स के, इतने सारे ये सब अलग अलग फील्ड में गए हैं और इन्होंने hmm, अच्छा फोड़ रहे हैं, तो दे बिकम द काउंसलर बेस्ट फॉर मी। ठीक है, बट वो जब गिव अप कर रहे हैं तो उसके बाद कैसे ढूंढना है आई डोंट नो। उस टाइम पे मेरा लिंक्डइन भी नहीं था। ठीक है, तो कनेक्शंस बिल्ड करना वो सब चीज़ें नहीं आती थी। तो लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, पहला hmm, फेलियर। एंड बस ये है कि वो एक्सपीरियंस मेरे को देके चला गया अच्छा, चीज़ें hmm. सिखा के चला गया। हर और उसके एंटरप्राइज बाद वही करता है, हर हाँ एंटरप्राइज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। हाँ वही है। हम्म हाँ, देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
So this was, This was the entire Junior Matrix, I think. हाँ काफी थोड़ी बदली बदली लग रही है, बट ठीक है। तो इसका कंसेप्ट था A to Z स्टूडेंट्स नीड। हम पे करियर काउंसलिंग करते थे, स्किल कोर्सेज हम्म भी मिल गए थे, एंड स्कूल हेल्प करने लगे थे। ठीक है, स्कूल हेल्प इज लाइक अ ट्यूशन ओनली एंड होमवर्क एंड समथिंग लाइक दैट। हम्म तो हम 3 कंसेप्ट पे लर्न द वे यू लाइक। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस पसंद है, वी विल कनेक्ट विद यू लाइव क्लासेस। ठीक है, ठीक है। एंड इफ यू वांट लर्न विद वाइट बोर्ड, ठीक है, तो हमारा पर्सनालिटी होती थी और पीछे वाइट बोर्ड पे आपको सब चीजें पढ़ा रहा होता था, एंड ये ठीक रिकॉर्डेड है। लाइक जस्ट लाइक अ यूट्यूब हैज। गॉट एंड द इट। थर्ड वाज द एनिमेटेड वन व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट। हम्म ठीक है, तो इसमें एनिमेटेड हो जाता था सब चीजें, पूरी स्टोरी लाइन होती थी, सब चीजें। अब इट्स लाइक है कि काउंसलिंग सेशंस होते थे हमारे, एंड इट्स वेरी मिनिमल प्राइसेस पे रखे हुए थे। ठीक है, 40 मिनट हम्म सेशन होता था। इसमें से हमें अराउंड, अगर आई टोल्ड यू अबाउट बिजनेस, कि हमें 40 रुपीज पर सेशन मिल जाता था, जिसमें हमारा कोई एफर्ट भी नहीं जाता था। ऑटो हम्म बुक, सब चीज़ें अपने आप होती थी, ऑटोमेट कर रखी थी। ठीक है, पेमेंट्स भी अपने आप, पेमेंट्स चली जाती थी काउंसलर के पास। ठीक है, एंड 40 रुपीज हमें बचते थे, बचे हुए पैसे ठीक है। उसके। ठीक है, तो दिस वाज द मल्टीपल फील्ड्स हम जिनको सबको एक्सप्लोर करा रहे थे। एयर होस्टेस हो गया, कॉमर्स फील्ड हो गया, एक सबसे यूनिक हमारा ये था कि डोंट नो व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन और विच फील्ड गुड इज गुड फॉर यू। तो ये वाला सेशन मैं लेता था कि जिसमें बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि करना हम्म है, फेवरेट्स भी नहीं पता, अंडरस्टूड। तो उसमें स्पेशली ट्रीट मैं खुद करता था, सेशन उस वक्त खुद ले रहा था ये वाले। हम्म फिर उसके बाद हमारे कोर्सेज होते थे, डिजिटल पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, सुपर शार्प मैथ्स। सुपर शार्प मैथ्स मैंने खुद एक बनाया था कि बच्चों को इस टेक्निक से, कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो सिखा के उनकी मैथ्स की नॉलेज एक्सेसिव लेवल पे बढ़ जाती है। फिर उसके बाद 6 to 8 के कोर्सेज थे हमारे, 9 to 9 to 12। 12 आ गए प्रोग्रामिंग इंग्लिश तो मेक सेंस। फिर हम नहीं शुरू थे, फिर स्कूल हेल्प प्रोग्राम था हमारा, ट्यूशंस क्लासेस थे, 1 to मल्टीपल थे, So this is वन online tuition sort of a thing, right? Hmm. 1 to मल्टीपल में हम ज़्यादा कैंडिडेट्स लेते थे। ठीक है, अगर आपको वन टू Hmm. वन करना था तो आप सिर्फ सिंगल कैंडिडेट हो जाता, Hmm. इसमें ट्यूटर आपको 1 घंटा पूरा पढ़ाएगा। Hmm. हम्म। This is a very operation heavy business overall, right? हाँ, वैसे भी या स्केल करने तो में बहुत चैलेंज रहता। इट्स लाइक कि मैंने बहुत इनिशियली इसको ज़्यादा लोड दे दिया, कहते हैं ना बकेट में हाँ. ज़्यादा सामान डाल दिया। So if you were to do this again, how would you do it? आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट विद द करियर काउंसलिंग अगेन, बिकॉज अब आज भी इस टाइप का सोल्यूशन नहीं है मार्केट में। ठीक Hmm. है, Exactly. आज भी इट्स लाइक कि या तो लोग प्रमोट कर रहे हैं, Hmm. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉलेजेस को। अगर कॉलेज दुनिया में चले जाओ, वहाँ पे आपको ज़्यादातर कि भाई जिसके पास उनका मार्केटिंग का पैसा होगा, बजट होगा, उसको वो प्रमोट कर रहे होंगे। वी डोंट हाँ. प्रमोट एनी वन। हम पूरा बच्चों को करियर एक्सप्लोर करा देते हैं, तुम्हें ये पढ़ना होगा, तुम्हारी जॉब ऐसी होगी, तुम्हारी जॉब के Hmm. वर्किंग आवर्स भी ऐसे होंगे, क्या तुम उस लाइफ अभी को तो नेटवर्क चाहते भी हो। है. हाँ ठीक है, तो क्या तुम उस लाइफ को चाहते हो, तो उस टाइप से एक्सप्लोर कराते थे हम। So तो why हाँ not मैं do this again? Like why you are anyways working on dark store and उसके साथ साथ you can also working मैंने on your सोचा own है, things. So, आई एम लुकिंग फॉर अ राइट पार्टनर फॉर दिस। ठीक है, hmm. अकेले इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अभी मैं द डार्क स्टोर में इंडल्ज हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं Hmm. चाह रहा हूँ कि मैं, और ये कैपिटल इन्वेडिंग प्रोजेक्ट है, इसको कैपिटल बिल्कुल. की बहुत ज़्यादा need है। मैं चाहता हूँ कि मैं डार्क स्टोर में ग्रो होने के बाद दोबारा इस पर फिर कभी काम करूँ। सिर्फ करियर काउंसलिंग वाला पार्ट इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है लेकिन. बट मैं चाह रहा हूँ उसको फिर ना बहुत अच्छे तरीके से और राइट प्रोसेस से किया जाए। पहले मैंने बहुत स्क्रैच प्रोसेस से किया था। ठीक है, ऑब्वियसली अब हाँ. जितने में, हाँ, तो अब जो प्रोसेस ही नहीं था अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ें जो हों वो प्रोसेस के साथ हो, हम्म तो बेटर होती हैं और रिजल्ट्स बहुत बेटर आता है। ये मैंने सीखा है जब मैंने एक यूके के डायरेक्टर के साथ, मतलब एक ब्रांड के साथ काम किया था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, हम्म इट वाज फ्रॉम यूके, ब्रांड है वो, फर्नीचर का ब्रांड है। ठीक है, ब्लिसवुड करके, विच इज अ कॉम्पिटिटर फॉर अ आइकिया। हम्म ओके, तो नोएडा ही ऑफिस है उनका।
तो उनके साथ जब काम किया था मैंने डायरेक्टर के साथ पर्सनली, तो उनके साथ मैंने प्रोसेसिंग सीखी थी। क्योंकि हम्म यूके के लोगों के साथ जब तुम काम करते हो ना, दे आर वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड, उनको रिजल्ट्स चाहिए और उनको चाहिए एक स्ट्रक्चर, फिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आप हम्म इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करोगे, अगर आप बीच में ब्रेक हुए तो यू आर ब्रेकिंग आवर ट्रस्ट एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, गॉट इट। अगर सपोज आप फॉर एग्जांपल आर यू आर इफ यू आर अ डिजिटल एजेंसी एंड यू वर्किंग विद अ यूके क्लाइंट, उनको ट्रस्ट ही तभी होगा जब आप प्रोसेस फॉलो होंगे। अगर गॉट आप इट। मल्टीपल आप हर क्लाइंट की तरह अलग अलग काम करते हो तो फिर वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। नो, दे आर लाइक अ प्रोसेस फॉलोअर्स। तो वो प्रोसेसिंग की पावर और उसका रिजल्ट जो मैंने आते हुए देखा है ना, वो नेक्स्ट लेवल था। तो वो जब मैंने सीखा तो वो अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और वही मैं जानता हूँ कि वही शायद जब मैंने कॉलेज में ये दोनों स्टार्टअप्स करे हैं, चाहे ग्रबी हो गया या फिर चाहे जूनियर मैट्रिक्स हो गया, दैट इज लैकिंग बिहाइंड द प्रोसेस। प्रोसेसेस आर नॉट इन लाइन। हाँ, इट इज अ वेरी किस तरह के इंपॉर्टेंट। प्रोसेसेस की बात हो रही है यहाँ पे? लाइक फॉर somebody who's watching, what kind of processes should that person be thinking of? प्रोसेस या हर चीज का ना एक प्रोसीड्यूर बना दो, एक छोटे छोटे टास्क का तुम एक केपीआईज रखो अपने, कि हाँ मैं इसको ऐसे फॉलो करने SOPs वाला and हूँ। और KPIs वाला पूरा सीन ना? हाँ, For वही। anybody who needs to know, KPI मतलब basically you are keeping some way to evaluate yourself यस। while you are doing your work. Hmm. तो वो बहुत तो ये जरूरी है, चीज वो जूनियर टीम मैट्रिक्स के में लिए भी पेंडिंग थी। जरूरी। हाँ, ये दोनों मेरे स्टार्टअप्स में हमेशा से रही है, कि मैंने हमेशा से हम्म बस गो ऑन रखा है। ठीक है, हम्म बट एक प्रोसेस फॉलो करते हुए स्टैग्नेंट नहीं हुए कि लेट्स गो स्लो, और हम्म। धीरे धीरे करते हैं। Have you noticed co-founder level पे issues दोनों तरफ? Because this is a pattern, और हाँ, मेरा secondary जो third person perspective था इस पे वो ये रहा है। क्या चीज मैं समझा नहीं। As in like the co-founders you actually started working with, do you feel like there were certain issues even on that end? डिपेंड करते हैं यार, ये तो आपका ना एक फाउंडर का चैलेंज होता है। जब बीइंग एम फाउंडर, मैं पहले फाउंडर रहा हूँ फिर को फाउंडर रहा हूँ, ग्रबी में आई वाज अ को फाउंडर। ओके, हम्म ठीक है। जूनियर मैट्रिक्स में जब मैं फाउंडर था मेरे, फिर उसके बाद 4 को फाउंडर आए थे साथ में मेरे, ऑल वर हम्म इन डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट सेक्टर एंड हैंडलिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंटली। हम्म बट वहां पे मेरे को ना कभी वो नहीं रहा है कि कुछ डर या कुछ, बिकॉज ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं। पहली हम्म चीज, जब आप चॉइस करते हो। दूसरा, मुझे पता है कि इनका लाइफ में गोल क्या है। इफ आई टॉक हम्म अबाउट माई सीटीओ, उसके एथिक्स इतने लेवल के, अगर मैंने बिजनेस ओरिएंटेड कोई फीचर डलवा दिया उसके प्रोडक्ट में जो उसकी क्रिएशन है, ठीक है, सपोज उसने कुछ टूल बनाया, कुछ भी बनाया तो वो उसको रखेगा नहीं, और उसमें अगर यूजर को इफेक्ट हो रहा होगा और तो उसके एथिक्स को इफेक्ट हो। वो एक प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा कुछ लेवल पे? प्रॉब्लम है एज अ बिजनेस, और बट वही। कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प भी करती है टू गेट अ राइट थिंग फॉर अ यूजर। पता है, क्योंकि वो बंदा यूजर के अपने एथिक्स को मैच करने के लिए कुछ ना कुछ यूएसपी क्रिएट कर देगा, जो हम्म मेरे को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा हम्म बाकियों से अलग। अब बिजनेस हम्म के लिए जरूरी नहीं है मेरे को प्रोडक्ट में ही कुछ हेर फेर करना है। बिजनेस के लिए हाँ। ये है कि आप सेल्स ही बन जाओ। सेल्स करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, तो आप दूसरे अप्रोच पे चले जाओ। ठीक है, तो मैंने दूसरा अप्रोच चुना, फिर उसको किया। और मेन है कि यार बहुत को जब आप को फाउंडर चुनते हो तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आप पहले तो क्यों चुन रहे हो, क्या वैल्यू ऐड करके लेके आएगा ये। ठीक है। बट एट दैट मोमेंट ये सोचा नहीं जाता था। हाँ, ये है कि उस वक्त सोचा नहीं जाता, बट मैं कहूँगा कि सोचना चाहिए। ठीक है, हम्म क्योंकि अगर नहीं सोचोगे तो एक टाइम बाद बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है, हम्म सपोज एक टाइम बाद आपको लगने लगा खुद से ही, एज अ फाउंडर आपको ये लगने लगा कि यार मैंने आई हैव गिवन हिम अ वैल्यू ऑफ अराउंड समथिंग, एनी वैल्यू, एक्स नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, बट आई एम गेटिंग इट वेरी लेस फ्रॉम हिम। तो या तो आप उसको बोलने लगोगे, बात बात पे पुश करने लगोगे, समथिंग लाइक बिजनेस में सिचुएशंस आ जाती हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, तब कुछ बोल दोगे। तो एक तो तब ये भी होना चाहिए कि यार वो अगर मेरे इस नेचर को एक्सेप्ट कर ले, वो इतना जानता हूँ मुझे। ठीक है, हम्म, तो वो सही को फाउंडर है। या तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करे तो फिर तुम्हारा चैलेंज है कि तुम्हें टेक केयर करनी आनी चाहिए अपने को फाउंडर की। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं इस चीज में ना, तो सो ये मैंने। हुआ आपका पूरा जूनियर मैट्रिक्स वाला लेवल का थिंग, देन यू वेंट हाँ, इनटू रबी।
ग्रबी या वाज फिर मैंने उसके बाद सोच लिया था कि मैं कभी स्टार्टअप नहीं करूंगा आफ्टर बीइंग जोन मैट्रिक्स, क्योंकि हाँ घर से थोड़ा सा प्रेशर आने लगा था, तो मैंने सोचा कि यार अब करेंगे प्लेसमेंट की तैयारी। और हाँ इस वजह से फिर मैं सेलेक्ट भी हो गया था अमेजोन में, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर सेलेक्ट भी हुआ था। ठीक है, बट लोकेशन हैदराबाद थी तो आई लेफ्ट इट, और उस वक्त थोड़ी मेरी मॉम की मेडिकल कंडीशंस नहीं थी ठीक, तो आई हैव टू बी स्टेइंग हियर नियर बाय ओनली, क्योंकि कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो आई कैन बी ओवर मेक देयर। सेंस। हाँ, सो तो देन इसी यू वजह वेंट से, इनटू ग्रबी। हाँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ तो आता ही था हमारे एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी में। ठीक है, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात फिर अनमोल से हुई थी, द फाउंडर ऑफ द ग्रबी। ठीक है, उसका आइडिया उस अनमोल, टाइम पे, अनमोल का इनिशियल आइडिया था उसका। हाँ, उसका नेम, आइडिया का नेम भी फूड डूड था। ही वांट्स टू हाँ, बी इन इनटू अ ब्रांड, इनटू अ टिफिन सर्विसेज। इनिशियल आइडिया ये गॉट इट। था। हाँ। लाइक डब्बा वाला इन मुंबई। ओके, बट और काफी फॉर अच्छा, कॉलेजेस। हाँ, बट आइडिया अच्छा था। फिर उसके बाद हम चार लोगों ने मिलके, हमने चार लोग इकट्ठे हुए। उसने पहले मेरे को बहुत पुश कर करके मनाया कि भाई करते हैं स्टार्टअप। ठीक है, बिकॉज गेटिंग मी, उसको ये मिल रहा था कि उसका फर्स्ट पिन और था, गेटिंग हम्म उसे एक फेलियर एक्सपीरियंस मिल रहा था कि कहाँ गलतियां नहीं करनी है। हम्म। ठीक। हाँ, वो तो तो फिर ये अच्छा आपको ही, भी काफी लेवल्स पे मिला उस चीज के ऊपर ना। हाँ। और नहीं, ये अगर आप ऐसे बंदे को अपना को फाउंडर बना लो, एक तो आपका ट्रस्ट है, कॉलेज दोस्त है, सब चीजें हैं, ये तो हम्म एंगल आ ही गया। दूसरा आपका ये एंगल आ गया कि हाँ भाई, ये एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इसने सब चीजें देखी हैं, 1.5 साल हाँ। इसने चलाई, कंपनी रेवेन्यू आता देखा है, टीम बिल्डिंग करी है, सब पता है सर। ठीक है, तो अब मेरा चीजें प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो उसने वो अपॉर्चुनिटी देखी, और जो कोई गलत नहीं है बीइंग अ फाउंडर, आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो वैल्यू ऐड करे। वो मैं मेक वैल्यू ऐड सेंस। कर रहा था, फिर उसके बाद उसने मेरे को मनाया। ठीक है, ऐसे ही उसने और भी फाउंडर्स को मनाया, अपने सीटीओ मनाया, सब चीज़ें ढूंढे, और फिर हमने अपना प्रोसेस चालू किया। पहले चार बंदों ने ही सिर्फ काम करना चालू किया था इसके, कि अब हम इसमें अलाइनमेंट करें, क्या टिफिन सर्विसेज करें, क्या करें, कैसे प्रोसेस करें, वेबसाइट बनाएं, ऐप बनाएं, क्या करें। तो ये सारी प्लानिंग चालू हुई धीरे 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 धीरे। तो फिर हमने काम करना चालू किया, वी हायर्ड द टीम एज वेल। फिर उसके बाद हम ग्रांट्स के पुश में लगे कि हमें ग्रांट्स चाहिए टू स्केल अप। तो हम हम्म सारे पुश में, फिर हम थोड़ा बहुत ब्रांडिंग करने लगे, अपने एमवीपी टेस्ट करने लगे। तो हम इस प्रोसेस में लगे, बट दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजेबल एप्लीकेशन इन अ मार्केट, बिकॉज उस वक्त कोविड के वक्त पहले ही दो बूम पे हो चुके हैं, सॉरी, स्विगी एंड जोमेटो। तो उस कंपटीशन में उतरना, इट्स बट वेरी यू वर नॉट चैलेंजिंग। वर्किंग on Swiggy and Zomato वाला idea. नहीं, The idea काफी was very मतलब, different, sir. the idea was very different in one USP only। जो हमारा यूएसपी था वही हमें बस डिफरेंशिएट करता था, बाकी पर्सपेक्टिव काफी हद तक सेम ही था। एट द हम्म एंड हम भी डिलीवरी में घुसना चाहते थे, बिकॉज द मोस्ट प्रॉफिट ऑफ वाज देयर ओनली, हमारे हम्म बिजनेस मॉडल का भी। भले ही हमने जोमेटो स्विगी से कम कमीशन रख दिए थे अपने रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए, बट हमारा भी उस बिजनेस मॉडल में डिलीवरी पे ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स थे। एक पॉइंट पे didn't you guys even have ऐसा zero commission for the uh, this thing shop owner? You were earning 100% from delivery, ऐसा भी कुछ था ना? हाँ, हमने स्टार्टिंग रखा था ऑन बोर्ड करने के लिए, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि अपने रेस्टोरेंट ओनर्स को ऑन बोर्ड करने के लिए, ताकि एटलीस्ट वो हमारा पीओएस यूज करें और ऐप पे आए, लिस्ट होएं। तो हमने 0% कमीशन पे रख दिया था। हम्म। उस वक्त फिर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी आ गए थे। कॉम्पिटिटर्स अलग ही लेवल पे, वो तो फिर फिर उसके मुझे बाद ज्यादा पता है क्या पॉलिटिक्स हुआ? का आइडिया लगा उसमें। हाँ, फिर लिटरली, फिर वी हमने उसके बाद फिर ना स्टार्टअप नहीं किया, ना काम हम्म किया। वी हम्म वर जस्ट प्लेइंग स्टूपिडली। आज हम एक एक को फाउंडर भी ना, जिसको पॉलिटिक्स आती भी नहीं, ज्यादा देखो, ये पॉलिटिक्स ना तीन कैटेगरी खेलती है, एक सीईओ, एक सीएमओ, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सीओओ। ठीक है, हम्म ये तीन सीएक्सओज होते हैं जो हमेशा खेलते हैं। ठीक है, हम्म पॉलिटिक्स लेवल पे कंपनी के लिए। ठीक है, बट आज हमारे सीटीओ या किसी वीपी तक को भी पता था ग्रब्बी के, कि जो हमारे कोर मेंबर्स हैं, जितने कोर मेंबर्स हैं, कि वी लिटरली डन शिट बिकॉज ऑफ दैट। हाँ। हमने उन पे ध्यान देने के लिए,
ठीक है चक्कर में अपनी नैया डुबाई है। और अपना मेन नैया क्या हुआ ना, मेन है कि अपना टाइम यूटिलाइज करा। हम बहुत टाइम के वो थे सेंसिटिव, because it was the final year and it was for the whole team pressure of family that we have to be serious for the placements as well. So you So were working in Grubby as? आज मैं एमडी का था, मैनेजिंग डायरेक्टर। Okay. ठीक है, तो मेरा मैंने टीम बिल्ड कर दी थी। मेरा मेजर रोल वो था कि मेरे को बेस्ट टीम उन्हें देनी है, रिसोर्स आउट करनी है। फिर उसके बाद मैं Okay. कहीं ना कहीं प्लानिंग्स में हेल्प कर देता था, प्रोडक्ट पे कुछ यूएसपी बनाने में, रिसर्च में, इन सब चीज़ों में रहता था। आई एम नॉट मोर इनटू डेवलपमेंट, मैंने डेवलपमेंट छोड़ दी थी। मैंने डेवलपमेंट जूनियर मैट्रिक्स के लिए की थी बट उसके बाद छोड़ दी थी। हम्म, बट हाँ, आई हेल्प इन द यूजर एक्सपीरियंस, कि कैसा यूजर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सर्वेज में जाता था, मार्केटिंग वो तो देखता था, बहुत तो देखा इस है। एंड देन उसके हाँ। बाद फिर वहां बहुत सारे कॉम्पिटिटर आए। एट वन पॉइंट आई रिमेम्बर देयर वर 12 कंपनीज हु वर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन द सेम मार्केट। फिर वो 12 से कम होते 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 फिर दो में बचे, और वो दो के साथ जो गेम थे चलिए, मतलब सही। फायदा और किसी का नहीं पता है, हुआ उसमें। मेरे हिसाब से मैंने ये देखा कि उन दो के भी ना फाइट के मजे बहुत लोगों ने लिए। बहुत ज्यादा लोगों ने, हाँ। बहुत ज्यादा वो तो लोग। फिर अब और इट्स कोई नॉट भी अबाउट बिजनेस में लड़ाई ओनली हो द रही है आर, तो। इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर फ्रेंड्स या चलो दोस्तों में जो लड़ाई चल रही है, रजिस्टर रहे हैं, वो अलग है। इट्स अबाउट द फैकल्टी आल्सो हु हैव यूज्ड अस। फैकल्टी ले लो, आप वेंडर्स ले लो, शॉप ओनर्स से ले लो। सबने किसी मतलब वही चीज है ना कि सबने अगर बंदे थे। दिस इज द होल थिंग। अरे, इफ आई टेल यू कि आज भी अगर मैं कभी कॉलेज पे जाता हूँ जैसे, ठीक है, तो ये रहता है कि अगर कोई दिख जाए, एक बंदा है तो सू करने के लिए ढूंढ रहा है विदाउट एनी रीजन, कि भाई तुमने तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया। इज लाइक दैट। टाइम वेस्ट के लिए। कुछ होते हैं यार, ठीक है, हर बिजनेसमैन सेम नॉलेज का नहीं होता, हाँ। सेम एथिक्स का नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी मिले हैं। जस्ट लाइक वी वर लिविंग इन शिवजोत, हम एक बाहर रेस्टोरेंट ओनर था, हमने बाहर के लिए भी जब अपना टेस्ट ट्रायल चालू किया था, तो वहां पे हमें जो मिला था, तो ही वाज रियली नाइस। उसने, वो इतना ओल्ड मैन था, उसके अराउंड 17 से 18 रेस्टोरेंट्स होंगे खुद के, विद डिफरेंट डिफरेंट नेम। ओके, तो ही सेड कि मैंने एक टाइम पे एक लौंडे को मौका दिया था, पता है किसे? दीपेंद्र को, जब उसके सिर्फ 7 रेस्टोरेंट थे। एक हम्म। टाइम था कि जब वो ये सात कौन सा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट उसका ओनर कभी कभी ही आता था। और बाई चांस जिस दिन हम उस पर ऑनबोर्डिंग करने गए थे, ठीक है, हम हम्म। खुद ही जाते थे, तो वो खुद बैठा हुआ था। तो उसने हमें हम्म। बिठाया, उसने बताया कि कैसे दीपेंद्र गोयल उसके टाइम पे उसके जलंधर वाले रेस्टोरेंट में आया था, बिकॉज जोमेटो वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जलंधर इटसेल्फ। हाँ। ठीक है, तो हमें भी लगा यार कि ये तो काफी है। फिर उसने फोटो दिखाई, लिटरली क्योंकि जब वो वापस आके उससे मिला था कि वो माय फर्स्ट रेस्टोरेंट टू ऑनबोर्ड ऑन द जोमेटो। हम्म। तो काफी था। तो उसने तो ये तक कह दिया था कि तुम करो करो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और जो तुम नया लेके आए हो वो भी अच्छा है। आई विल बी सपोर्टिंग यू, इफ यू नीड फंडिंग आई विल बी फंडिंग यू। हम्म। तो वो काफी अच्छा अप्रोच था, वो मेंटर काफी अच्छा था। ऐसा नहीं कि हमें लोग क्यों नहीं अच्छे लिया नहीं, फिर? कहीं ना कहीं यार बहुत सारे डिसीजन हो जाते हैं। मैंने वही कहा ना, बीइंग अ को फाउंडर बहुत सारे अलग अलग डिसीजन, इट वाज नॉट माय कॉल ओनली। ठीक है, इट वाज द फाउंडर कॉल। और मैं ना ऐसा को फाउंडर बना जो अपने फाउंडर को आगे रख के चलता है। ठीक है, मैं हमेशा से ऐसे ही था, क्योंकि मैंने, मेरे को फाउंडर ने मेरे को आगे रखा था जब मैं फाउंडर था। तो मैं भी वही चाहता हम्म। था। तो वही बात है बस। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों में उलझ के टाइम वेस्ट करके हमने उसको क्रैक नहीं कर पाए। फिर प्लेसमेंट्स के प्रेशर ने दबा दिया ग्रबी को भी। एंड फैकल्टी का जो प्रेशर था वो अलग। वो अलग था। ये तो चलो, दिस इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि बीप कर देंगे जो नाम था। जो वो मेन जरूरी ग्राउंड था नहीं है। उसका। लेकिन पॉइंट इज कि ये तो काफी रहता है यार, ये तो एक लेवल पे सपोर्ट एंड इकोसिस्टम जो बोला जाता है और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है जिस तरह से, वो तो रहता है। ये मतलब हमने भी नोटिस करा है ये चीज। इसलिए लिटरली लाइक मैं, क्या, आज भी अगर किसी को पर्सनली काउंसिल करता हूँ तो ये कहता हूँ
कि अगर तुम अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो लिटरली वो वैल्यू करता है कि तुम हम्म। अगर राइट इंस्टीट्यूशन में हो तो वहाँ का प्रोसेस, वहाँ का सपोर्ट में डिफरेंस आएगा। सपोर्ट का मेन चीज है, हाँ। हाँ। Entrepreneurship as a whole, a founder can do as much as he or she wants, but ऐसा opportunities आने का तो होना चाहिए, एटलीस्ट एक स्कोप तो होना चाहिए. There should be a door which is हम्म। existent at least. But चलो, that is a separate thing. You ran Grubby for about 1.5 year, No, around 2 years. 2 years, 2 years, and प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरा हुआ, पूरा वेंडर्स पे गए, हमने पूरा मार्केटिंग करा. आई मतलब एक रिमेम्बर ऐसा तरीके पूरा से टी शर्ट वी वी शर्ट सब हैव, कुछ था. हाँ तो वी हमने मार्केटिंग टेस्टिंग भी कर ली, एमवीपी भी क्रिएट कर लिया, दैट वाज द होल concept So of 2 years. where do you think on a meritocracy level, where do you think did it actually hit you that this is not working? इट्स नॉट अबाउट हम, हमें कभी हिट नहीं होगा। आज भी आप किसी को फाउंडर से पूछोगे अभी के तो वो कहेगा कि इट वाज अ ग्रेट आइडिया, इट वुड बी एग्जिस्टिंग टुडे अगर हम आज भी Exactly, काम कर रहे हैं। ठीक है। exactly. बट पॉइंट है कि धीरे धीरे ना सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सी इफ यू आर अ 5 members of group, 5 or 6 members in a group, ओके, जब आपका एक बंदा गिव अप करता है किसी सिचुएशन की वजह से फॉर हिज पर्सनल सिचुएशन, तो बाकी चार भी इफेक्ट होते हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ अ स्टार्टअप। बिल्कुल. को फाउंडर लेवल पे जब कोई ब्रेकआउट होता है सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स एंड बिकॉज ऑफ दैट. हाँ, तो वही हुआ कि जब एक ने क्विट किया तो बाकी चार हिल गए। फिर एक ने जॉब करनी शुरू कर दी जिसने क्विट किया, तो फिर उसके बाद बाकियों को प्रेशर होने लगा, यार वो तो कमाने लग रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, हम यहाँ घिसे जा रहे हैं। फिर दूसरा कोई मोटिवेट हो गया टू क्विट, एंड जब ये साइकिल ब्रेक होती है तो फिर रुकते नहीं है, फिर सब ब्रेक इन ब्रेक इन ब्रेक इन ब्रेक इन। एंड वेंडर्स का आपको क्या लगा कि like do you think there is still market for this? या देयर इज स्टिल मार्केट फॉर इट, अगर कोई लेके आए, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म आइडिया है, ये एक्वायर्ड आइडिया है। ठीक है, ये कोई भी जोमेटो स्विगी आगे चल के प्रेशराइज करके आपको एक्वायर ही करेगा। आप Hmm. उसके लिए अपना गैप बना लो, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग रहेगा। अगर हाँ But आपको your market was उस very different, right? Market with respect to Zomato, Swiggy, etc., etc. But then, ये भी है. At scale, you'll have good number of colleges, let's assume. Then most probably Zomato or Swiggy would acquire. ठीक है, अगर आप सिर्फ कॉलेजेस में लिमिटेड रहते तो हम प्रॉफिट नहीं बना पाते, हो तो भी हमारे पास कॉम्पिटिटर में बड़ा प्लेयर था, द स्मार्ट क्यू। ठीक है, Hmm. जो बैक्ड बाय amazon था, हाँ. वैसे भी। ठीक है, और उसके जैसा प्ले, क्योंकि और वो क्यों सारे कॉलेजेस में आज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दैट इज अ प्रीमियम थिंग। Hmm. ठीक है, So हम one more प्रीमियम थिंग point नहीं। that comes up here is that you have faced very heavy competition, very very heavy competition comparatively. कोई भी सब, मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मेरा, I don't look at competitors as much because I feel मेरी इंडस्ट्री में I don't need to look into that right now. There is a very very big market. It's a very open market for me. And अगर मैं competitors देखने बैठूंगा तो फिर वो या तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे या फिर वो बहुत ऐसा गिनती पे रहेंगे. मतलब it's about your scope. First of all, you define your competitor. It's a very very important thing कि कौन competitor है कौन नहीं है. That is what you define. So बीच में there was one conversation we had back then where you said that, say for example, XYZ is not your competitor. Do you think that that was just a strategy internally अपने आप को set करने के लिए, या फिर do you think you were actually believing that it was not a competition? ये आपका खुद का मोटिवेशन होता है बस। इट इज एन हाँ. एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, वो भी अपनी कोई स्ट्रैटेजीज बना रहा है, ये राइट है, पोजीशन है, बट हाँ. आप उसको पोजीशन में रख के काम कर रहे हो, वो गलत है मेरे हम्म. अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बट आप इससे कंपटीशन अच्छा। तो एग्जिस्टेंस पे लेना तो पड़ता ही है ना, स्पेशली somebody who's so close, ऐसा नेक्स्ट डोर कॉम्पिटिटर है. हाँ, अगर है, अगर आप तो प्रोडक्ट डेवलप करते वक्त मत करो, जब हम्म. मार्केट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो तब करो। हम्म. ठीक है, इसमें अब भी ना एक दो तरह की होती है competition as a whole. What I felt was what happened in that very closed arena was that दोनों एक दूसरे को काटने में लग रहे हैं. Whereas there is also competition like Zomato और Swiggy है, वो काटते भी है तो दोनों का प्रमोशन होता है.
So, do you think that there was some thing that could have been worked out better on that level? वो वो तो होता है बट पॉइंट है ना दे हैड अ ग्रेट बिग मार्केट द नॉर्दर्न एरिया वाज कैप्चर्ड बाय ऑलरेडी बाय Zomato द सदर्न एरिया इज फॉर द स्विगी राइट बिकॉज Hmm. स्विगी वाज स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर एंड Hmm. Zomato was started from पंजाब तो दोनों ने Hmm. अपने अपने एरिया कवर करते हुए आए अब उनकी फाइट Hmm. हमेशा मिडिल में होती है ठीक है Hmm. एंड Zomato ने ब्लिंकिट एक्वायर किया वहां उन्होंने इंस्टामार्ट अपना खुद का चालू किया ठीक है Hmm. आज स्विगी ने फॉल्स मार्केटिंग चालू करी Zomato ने भी फॉल्स मार्केटिंग चालू कर दी कि Hmm. 80% ऑफ है बट अप टू ₹100 ओनली ठीक है Hmm. तो ये तो हाँ. नॉर्मल है ठीक है अब शार्क टैंक का ही वही कंसेप्ट ले लो दीपेंद्र वाज आउट व्हेन द स्विगी स्पॉन्सर्ड द टैंक बट ठीक है दो का प्रमोशन हो गया अपने लेवल पे. हाँ अपने अपने लेवल पे हो गया तो ये तो अच्छा ही है बट पॉइंट है कि जब आपका ना आप जिस स्टेज पे हो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम उस स्टेज पे थे वो कंपटीशन करने का स्टेज नहीं हाँ. वो अपने आप हाँ. को ग्रो करने का स्टेज था हाँ. कंपटीशन करने का उन जोमेटो स्विगी ने तब स्टेज अपना एक दूसरे का बनाया जब वो एक सेम लेवल पे आके फाइट कर सकते थे एक दूसरे से ठीक है तब सो राइट प्रोडक्ट टाइम डेवलपमेंट लेवल पे, एमवीपी लेवल पे, इनिशियल स्टेजेस पे बस चलते रहो. डोंट लुक एट अदर पीपल. यस तब अपने पे जितना होमवर्क कर सकते हो, उनको देख के मोटिवेट हो अपने पे काम करो बट उनको देख के उनके शैडो पे काम करके या उनको डिस्टर्ब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तुम अपना ही ये टाइम तो वेस्ट करो ये नोटिस मैंने कहा दोनों टीम्स का था ये कि हाँ बोथ द स्टार्टअप्स आर वेरी फोकस्ड ऑन वन थिंग, दैट अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं. इनिशियली दोनों का एक जिटरी सा हुआ था कि वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं. दोनों हम्म थोड़ा सा मेंटली ऑफ सेट हुए थे कि नहीं, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. वो लोग क्या कर रहे हैं. दोनों का थोड़ा सा पॉइंट हुआ था. बट जब इवेंचुअली बोथ ऑफ यू हैड अ गुड सेपरेट पीसफुल लाइन ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद फिर बस वही था कि मार्केट नहीं अडेप्ट नहीं करा वाला चीज हो गया था कि अब वो पॉलिटिक्स है, वो तो कुछ नहीं कर सकता उसका तो. वही चीज है हम्म, दोनों टीम्स का अपना अपना रीजन था. देन उसके बाद फिर यू गाइस यू मूव टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड यू, फिर ये एकदम से तीसरी बार एंटरप्रेन्योरशिप करने का देखो कैसे एकदम है तो है आया. ही अभी भी हाँ. है कीड़ा तो है और करना हाँ. है लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वो हमेशा से है हम्म. ठीक है अभी बाकी सब अभी जॉब्स ही कर रहे हैं बट आई हम्म. स्टार्टेड इनटू दिस थिंग द डार्क हम्म. स्टोर और आइडिया पहले से बहुत टाइम से मतलब क्रेविंग था मेरे को एक और आइडिया था विच आई वांट टू बट वो फिर से सर्विस बेस्ड में हो जाता तो हम्म. मैंने वो शुरू नहीं किया आई वांट टू बी इन प्रोडक्ट नाउ कि जो सिंपल हो सटल हो और ग्रोइंग भी हो So this is hoodies and t-shirts, and you're looking हाँ forward to all kinds of apparel, or you're limiting yourself to, say, for example, hoodies and t-shirts only? नहीं नहीं ऑल काइंड ऑफ अपीयरल अभी हमारे वन पीसेस लॉन्च होंगे बिकॉज सी द ब्रांड इज ऑल अबाउट वुमेन्स अगर आप वुमेन के लिए ब्रांड बना दो तो जल्दी ग्रो होते हो ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए उतनी कैटेगरी नहीं है अब स्निच ने सिर्फ मेंस में ही प्ले करके अच्छा किया है ठीक है बट अभी हाँ. लेटेस्टली मेंस में दो ब्रांड्स इतने हाइप हैं द सोल्ड स्टोर हो गया या स्निच हो गया तो उस कैटेगरी में अभी उठना मुश्किल है इससे अच्छा कि मैं अपने रूट्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर लूँ टू प्ले एंड फाइट विद देम तो वो मैं इसलिए वुमेन्स कैटेगरी भी ज्यादा लॉन्च करूँ So you're focusing more on women's, nice. तो हाँ अभी with Soul Store, your product development, it goes completely in the factories. It goes completely with the artisans. हम्म It goes completely with, you don't have no control on it. मतलब एक लेवल से सॉफ्टवेयर पे रहता है ना कि it's easy to manipulate. वहां पे हम्म it's you decide this is the fabric, this is the design, and फिर वो प्रोडक्शन शुरू हम होता है, हम चलता है. हम फैब्रिक्स के सैंपल्स पहले ही ले आते हैं हाँ. अपने फैशन डिजाइनर्स को दिखा देते हैं कि अभी हमारे पास अवेलेबल फैश So हमारे you have a team right मैन्युफैक्चर now. हाँ कितने सो लोग? अभी है तो हम 15-16 ही हैं बस बस नहीं होता था. स्टार्टअप मैं स्टैंडर्ड में बस नहीं होता. मैंने ना एक चीज रखी है हमेशा से बीइंग अ जूनियर मैट्रिक्स मैंने शुरू करी थी ठीक है दुनिया में बहुत सारे यार कॉलेज स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास स्किल्ड बहुत तगड़ी है बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है एक तो ये हम्म. तरीके के लोग हैं हाँ. दूसरे हैं जिनके पास स्किल्ड भी है अच्छी लेवल की और
बट उन्हें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं आती है। आज के टाइम हम्म पे जॉब ढूंढना भी एक आर्ट है। हम्म यू नो दैट कि इस टाइम पे अप्लाई करो, ये कवर लेटर्स डालो, ये रिज्यूम में होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, हम्म तो वो नहीं आती है। ठीक है, तीसरे होते हैं जिनके पास स्किल भी नहीं होती है बट लर्निंग पावर फास्ट होती है। दे वांट हम्म टू लर्न, उन्हें कुछ ना हंगर है कि कुछ ना कुछ सीखना है। तो इन तीन तरह के लोगों को मैं ढूंढता हम्म, हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं अभी सैलरी तो अफोर्ड कर नहीं सकता इनकी ज़्यादा, और मेरे को चाहिए अच्छे लेवल के। ठीक हाँ। है, तो मैं इन तीन लेवल को ढूंढता हर हूँ। हर स्टार्टअप फाउंडर का इनिशियली यही सबसे बड़ा पंगा होता है कि अच्छे लोग कहाँ से मिले। तो मैं इन तीन लोगों को ढूंढ के फिर मैं टीम सेटअप करता हूँ। आज अगर मैं तुम्हें ग्रबी का ड्रॉबैक बताऊँ, आज के टाइम पे ग्रबी की जो एचआर भी थी वो 70,000 पर मंथ आज कमा रही है। हम्म ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारे ग्रबी के जितने एम्प्लॉयज थे या मेरे जूनियर मैट्रिक्स के भी जितने एम्प्लॉयज थे, ऑल आर वेल सेटल्ड इन अ बिगर ब्रांच। और ये मैं हमेशा रखता हूँ, कभी भी किसी को टीम देने से पहले या खुद के लिए टीम हायर करता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ, आई वोंट स्टक यू गाइस विद मी। ठीक है, the मैं तुम्हें right कुछ ग्रो the कर। right people in the right startup at the हम्म right time, even if the startup doesn't work out, you'll end up you learn so much that when you go out of it and when you get into the industry you notice कि सब बैठ नहीं सकते, so बहुत डाइवर्सिफाई हो जाती चीजें। हम्म लाइक बट हमारे अगर मैं बैकएंड वालों की बात करूँ तो हम्म the kind of things that they're working on, you would have to work for 7 8 years to get to that level in any other company to just get access to the. वही, आज मेरे फैशन डिजाइनर है, वही कहते हैं कि सर हमें लास्ट कंपनी में प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करने दिया, बस हाँ ऊपर ऊपर से दिखाते हैं। और आज मैं हाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, भाई तुम जितने एक्सपेरिमेंट करने करो। हम्म तो ये उनकी ग्रोथ ही है। मेक सेंस एग्जैक्टली। ठीक है, कि आप यहाँ पे कर रहे हो, ग्रो करो। आप जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, मेरे को तो ये है कि भाई तुम ऐसा डिजाइन बनाओ जो बिके। ठीक है, मैं उनको ओपनली बोलता हूँ कि ऐसा हाँ डिजाइन बनाओ जो यूएसपी बने और बिके। ठीक है, तुम्हें हम्म ऑडियंस के लिए बनाना है, तुम्हें वो नहीं बनाना जो मुझे पसंद आए, जिसपे मैं सो अभी क्या अप्रूवल। बिक रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाँ अभी प्रोडक्ट्स आप? इट्स लाइक हमारे टी शर्ट्स काफ़ी अच्छे बिके थे। ठीक है, उसके बाद अभी हम नए प्रोडक्ट लाइन बना रहे हैं, तो अभी हमने होल्ड कर रखा है अपना ऑपरेशंस। ठीक है, हम्म अभी नई वेबसाइट एंड नए प्रोडक्ट लाइन लॉन्च होंगे। इस क्रिसमस पे भी हो सकते हैं, न्यू ईयर पे भी हो सकते हैं। अभी मैंने हम्म कोई डेट डिक्लेयर नहीं करी है। ठीक है, तो इन दोनों पीरियड पे हम लॉन्च कर देंगे, जिसमें हमारा विंटर लाइन भी होगा, नेक्स्ट समर लाइन भी होगा। मेक सेंस। सो बट जो टी शर्ट्स भी सेल हो रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम इज इट? इट्स लाइक नॉट दैट मच बिकॉज अभी हमने कोई मार्केटिंग ही नहीं करी है। हाँ इंस्टाग्राम पे भी जो हम थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स कनेक्शन में थे उनसे मार्केटिंग करवाई, वीडियोस बनाई, हम्म मतलब हमने वो तो हमने इट्स लाइक अपना पेज बिल्ड करने पे ग्रोथ था हमारा। हमारा ये नहीं था कि ठीक है। हमारे वहां से कोई कस्टमर आएगा या कुछ होगा। हमारा फोकस था हम पेज बिल्ड कर रहे हैं, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म तो हमने वहीं से शुरू किया था थोड़े बहुत मार्केटिंग करना। बाकी हमारे पर्सनल एंड पे कुछ मेरे रिटेलर्स भी हैं, जैसे जिन्होंने अपनी शॉप्स में रखा हुआ है नोएडा में। ठीक है, दो ही तीन रिटेलर हैं, अब तो दो ही हो गए, पहले तीन थे। ठीक है, क्योंकि अब सीजन ऑफ हो चुका है, टी शर्ट्स का कुछ है नहीं। हम्म ठीक है, और हमने ऑपरेशन होल्ड कर रखा है, तो उनके पास कुछ कुछ स्टॉक ही बचा है, 2 से 4 पीसेस का। नहीं तो उन्होंने 50-50 स्टॉक इन करे थे हमारे डिज़ाइन, और सब सोल्ड हो गए थे। ठीक है, और रही बात मेरी पास इन्वेंट्री की, तो हमने अराउंड 300 पीसेस की इन्वेंट्री उठाई थी फर्स्ट लॉट, और अब मेरे पास कुछ हम्म नहीं बचा। अब मैं नई इन्वेंट्री उठाऊंगा, तो इट्स ये तो लाइक कि बढ़िया है चीजें दैट द प्राइस पॉइंट यूर सेलिंग एट, इट्स अ प्रिटी गुड प्राइस पॉइंट, एक 1000 रुपए 100। हाँ, के आसपास। बट क्वालिटी भी है ना ब्रो, इट्स अबाउट कि हमने क्लेम करते हैं कि हमारे 1000 वॉशेस तक हमारे पैटर्न्स को कुछ नहीं होगा। हम्म 2000 वर्सेस, इसका क्या मेट्रिक रहता है फॉर somebody who wants to get into say for example fashion and textile? खास यार, मैं एक चीज कहूंगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, आपको उसकी नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है। ठीक हाँ है, उस नॉलेज पे आप ये नहीं रिकमेंड कर सकते कि यार मैं बिजनेस संभालूंगा, मैं कोई को फाउंडर ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, हम्म बीइंग अ सीईओ लेवल आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फैब्रिक फील क्यों कर रहा है, इस फैब्रिक का नाम क्या है,
ये फैब्रिक का हम्म प्राइस क्या है मार्केट में, कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। आप ग्राउंड से सीख लो, थोड़ा टाइम ले लो उसको लॉन्च करने में, बट उसके बारे में सीख लो, क्योंकि जब वो एक जर्नी या किसी एंड पे जाएगा तो हमें कॉस्ट सब कुछ उसको पता होगी। बिल्कुल। वही मैंने चीज़ें सीखना चालू करी, डिज़ाइन पॉप प्रिंटिंग्स क्या होती हैं, टाइप ऑफ प्रिंटिंग्स क्या होती हैं, क्या बाकी ब्रांड्स कर रहे हैं यूनिक। ये मेड बाय ह्यूमन द सोल स्टोर क्यों लिखता है अपने आगे, कैसे वो मेड बाय ह्यूमंस है। अब सारी तो चीज़ें फैक्ट्री में बन रही हैं, वो मेड बाय ह्यूमन तो वहाँ पे सारे टेलर कोई ना बना रहे हैं वही। बैठ के। इस बाय इट वाज सेड बाय मेड बाय ह्यूमंस बिकॉज एक एक डिज़ाइन वो खुद क्राफ्ट करते हैं टैबलेट्स पे। गॉट ठीक इट। है। हाँ, वो कोई सो ग्राफिक्स मतलब उठा ऐसा, नहीं। नॉट मेड बाय एआई, नॉट मेड बाय एनी अदर पिक्चर दैट हम्म, यू फाउंड ऑन द इंटरनेट। या वो खुद ही वही स्क्रैच बनाते हैं। इट्स लाइक हम्म दे आर हैविंग द पेंटर्स who are painting their designs. सो व्हाट इज द प्लान विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग अभी आगे विद डार्क स्टोर? अभी हमने बस अपने सारे प्रोडक्ट अलाइन करने के बाद हमने सोचा कि हम व्हाट्सएप मार्केटिंग में जाएंगे, कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, जो एक हर फैशन ब्रांड का रहता है गोल, कि वी वांट टू मेक अ कम्युनिटी, ताकि हम लॉयल कस्टमर्स को ज्वाइन करा सकें। हम्म क्योंकि नाइस। जब एक ट्रेंड निकलता है तो उसको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी होती है। वो वहाँ कम्युनिटी एग्जैक्टली। बिल्ड, तो वहाँ पे ट्रस्ट आएंगे, नई डिज़ाइन लॉन्च होंगे तो पीपल वांट बाय इट। सो इवन विद टी शर्ट्स ऑल योर बिल्डिंग टी शर्ट्स एंड इस सब में अभी ज्यादा कॉम्पिटिटर क्या दिख रहा है आपको? कॉम्पिटिटर्स, ये स्पेस ही बहुत बड़ा है ब्रो। हम्म हम कॉम्पिटिटर्स को देख के सीख सकते हो, बट ये स्पेस इतना बड़ा है कि आप अपनी स्पेस बना सकते हो। लाइक फॉर बहुत। एग्जांपल यू हैव black और मैं, clothes, right? हाँ, But you are limited to black clothes. Say, for example, a similar अभी, brand in your category, which is not limited to black, can also create black. ऑफ कोर्स दे आर आल्सो क्रिएटिंग, वो तो मल्टीपल कलर्स में ही है। So, don't you feel this is a limitation? हमारे पास देखो, एक ना मेरे पास चैलेंज आया था इंडिया को लेके कि आप इंडिया में ब्लैक कलर का ऐसे बना रहे हो। इंडिया में ब्लैक कलर को अशुभ माना जाता है, Hmm. हर जगह पहना नहीं जाता, बहुत लोग मना भी करते हैं। बट मैंने Hmm. एक सिंपल सा जवाब किया, आप हर कबर्ड में जाके देखो तो मैं ब्लैक के सबसे ज्यादा पीसेस मिलेंगे, डुप्लीकेसी मिल जाएगी। ठीक है। Exactly. दूसरा, ठीक है, तो ब्लैक में लोग ऑप्शंस खरीदते वक्त ज्यादा सोचते नहीं, Uh, दे लाइक इट, दे वेयर इट, एंड दे जस्ट बाय इट। ठीक है। दूसरी चीज, इट्स अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट, hmm. कलर। ठीक है। मेरा अगर ये मेल सेक्शन में नहीं निकला तो ये मेरा फीमेल सेक्शन में निकल जाएगा, ये डिजाइन। Hmm. तो मेरे को फेल ऑफ डिजाइन बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है। और ऊपर से डेड स्टॉक के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि Hmm. सपोज ये कलर लॉन्च किया, ये अच्छा नहीं चला, तो मेरे को कोई ना कोई सेल निकालनी पड़ेगी, बाय वन गेट वन की, जिसमें हीरो प्रोडक्ट के साथ ये डेड प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, तब जाके वो ब्लैक के निकलेगा। साथ एक और इशू ये होता है कि फेड हो जाता है, बिकॉज आई एम वेरी एविड विद द कलर ब्लैक, लाइक आई वेयर ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक टी शर्ट्स अ लॉट। वो डिपेंड है, फेड हो डिपेंड जाता है। फैब्रिक पे। हम्म ठीक है, वो फैब्रिक पे करता है डिपेंड, कि आप किस तरीके का ले रहे हो। ठीक है। अगर आप आज किसी अच्छे ब्रांड का लोगे, थोड़ा प्रीमियम ब्रांड को टच कर जाओगे, तो फिर वो कभी फेड नहीं होगा, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग टिल 4 to 5 years। बाकी ये भी डिपेंड करता है हमारे डिटर्जेंट क्वालिटीज़ पे भी, कि हम कैसे उसे वॉश कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फैब्रिक। जैसे कभी कभी हमने लॉन्ड्रीज में दे देते हैं, कभी कभी खुद वॉश कर लेते हैं, तो उस पर फैब्रिक खराब हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा धूप में पड़ा रहा। ठीक हम्म है, हमने 3 दिन तक उसे सूखने रख दिया, तो उस पर टी शर्ट खराब हो जाती है फिर। हम्म इन सब चीज़ों पे, और ये ज़्यादातर केसेस कॉटन के साथ ही होते हैं, सो व्हाट इज क्योंकि दिस सेंसिटिव क्लोथ? फैब्रिक है। डार्क स्टोर पे जो मिल रहे हैं टी शर्ट्स, वो क्या, वो भी दैट इज आल्सो कॉटन और इज इट समथिंग एल्स? कॉटन ओनली, इट्स फ्रैंकलिन कॉटन कहते हैं उसे। ठीक है, अभी जो हमने फैब्रिक शुरू की है। ठीक है, ये कॉटन इट्स लाइक थोड़ा सा ऐसा होता है, स्मूथ होता है, मतलब बॉडी हम्म को कूल रखता है। ठीक है। तो इस टाइप का कॉटन है, और इसमें कभी भी आपको ना, यूजुअली जब आप ये डीटीएफ प्रिंटिंग वाली टी शर्ट्स पहनते हो तो ऐसा लगता है कि आपके पीछे ना पेपर है, फील हम्म होता है कि हाँ स्टिकर हाँ से चिपका हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा हार्ड फील होता है, और उसके वजह से स्वेट क्रिएट होता है, तो दैट हम्म डजंट फील इन दिस फैब्रिक। मेक सेंस, मेक हाँ, सेंस। तो ये कंफर्ट जोन मिल जाता है, तो दैट्स व्हाई इट हैड अ गुड सेल। एंड ऑल्सो इट्स टी शर्ट्स, सो हाँ, क्लोथिंग सेल हो जाती है, यू गेट रेवेन्यू फास्टर, यू गेट। अब अभी जैसे सबसे बड़ा मैंने तो, चैलेंज क्या है इस इंडस्ट्री में जो दिख रहा है?
सबसे करंट एट दिस स्टेज? तो फाइंड आउट यूएसपी। बिकॉज सब कुछ है वो अलग कर रहे हैं, डिजाइन को कोई यूएसपी मानता नहीं है, पहली चीज अब हाँ मान लीजिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग कर रहा है। हाँ। ठीक है। और तो इसमें यूएसपी फाइंड आउट करना कि इन्वेस्टर को दिखाना कि यूएसपी क्या हो सकती है, क्या अलग लेवल पे हम कर रहे हैं। वो चैलेंज रहता है बस, बाकी तो इट्स अ कॉमन बिजनेस, इट्स नॉट मोर देन अ स्टार्टअप, इट्स नाउ कॉल्ड एज अ बिजनेस ओनली, कि एक हम्म। नॉर्मल बिजनेस है, यू आर सेलिंग इट ऑनलाइन। यू ठीक है। थिंक यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स अभी आगे, और यू थिंक यू आर जस्ट गोना गो नॉर्मल अपना चलाते रहेंगे? नहीं, अभी तो चलता रहेगा, इट्स फाइन टू गुड टू गो। फिर इसके बाद हम अमेजोन में लिस्ट हो जाएंगे, जब अमेजोन मिंत्रा इन सब पे मार्केट प्लेटफॉर्म्स पे, तो और ज़्यादा बूम मिल जाता है एकदम रेवेन्यू को। हम्म। खर्चे तो बढ़ते नहीं है उसमें, रेवेन्यू ही बढ़ता है। तो दैट एग्जैक्टली इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट इज द एडवांटेज। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि यू इट्स लाइक फॉर एग्जांपल विद जूनियर मैट्रिक्स इट वाज डिपेंडेंट ऑन फंडिंग। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू नीडेड हाँ, फंड्स, अदरवाइज इट वुड नॉट वर्क आउट। दैट्स व्हाई आई सिमिलरली। वांट टू बी इन प्रोडक्ट बेस्ड, कि प्रोडक्ट बेस्ड आपको ना कुछ कैपिटल देना इनिशियली चालू करता है। तुम एक भी खरीदोगे तो पहले वो एक बेच के तुम इतना प्रॉफिट ले आओगे कि तुम दो खरीद सकते हो। वही 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 हाँ। ठीक है। और उसके सर्विस बाद फिर में ग्रबी सर्विस का भी में सेम हुआ। हाँ ग्रबी वाज सर्विस आल्सो में वेरी डिपेंडेंट। हाँ सर्विस में आपके पास एक बार ही आएगा, और बहुत ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट बेस से ज्यादा रेवेन्यू दे देगा तुम्हें अगर वो सक्सेस होता है। ठीक है, और वो इस लेवल का होगा कि तुम्हारे ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, तुम 80% भी खेल रहे होंगे, भले ही हम प्रोडक्ट बेस्ड वाले 50% पे खेलते हैं, 2x पे ही खेलते हैं बस। ठीक है। बट सर्विस बेस्ड वाले 80 और 95 तक पे आ जाते हैं, अपनी सारी चीज कॉस्ट 10% पे रख लेते हैं, इतना रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बीइंग अ सास प्रोडक्ट या कुछ भी। ठीक है। बट बीइंग अ हार्डकोर प्रोडक्ट आपको फिर 50 पे ही प्ले करना होता है। बट उसमें इनिशियली मेहनत बहुत ज्यादा होती है कि उस लेवल पे ले जाने के लिए। इसमें आपको थोड़ा सपोर्ट रहता है कि आप एक एक बेच के, दो बेच के, तीन बेच के, चार बेच के करते रहते हम्म। हो। ये चैलेंज है, अब जिसको अंधा पैसा चाहिए वो सर्विस में जाए। बट अंधा जिसको पैसा के लिए अंधा मेहनत करनी पड़ती है। बस वो है। और हाँ। पॉइंट है कि अंधी मेहनत के साथ साथ ये है कि अंधे टाइप के अलग अलग टाइप के हर्डल्स भी आते हैं जिनको लेवल को फेस करना आना चाहिए। वही। अगर आप उस लेवल पे कर सकते हो, या आपके पास स्टार्टिंग में ही आपके पास कैपिटल है और आपको पता है राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो बहुत आसान है सर्विस हम्म। बेस्ड। ठीक है, बट अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड में जा रहे हो तो प्रोडक्ट बेस्ड इज अबाउट द कैपिटल, आप चार कैपिटल डालो। ठीक है। कुछ भी अच्छा आइडिया सोचो कि हाँ मैं ये बेचना चाह रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ अडाप्टर बेच रही हैं, ये यूएसबी बेच रही हैं विदाउट एनी ब्रांड लोगोस। ठीक है, उनके ऑफिसेस तुम जाओगे ना, तुम देखोगे भाई ये तो नेक्स्ट लेवल कंपनी है। 100 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जिसमें से 60 करोड़ इसका प्रॉफिट है। और क्या कर रही है, सिर्फ चार्जर और अडेप्टर बेच रही है, चाइना से इम्पोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके। ठीक है। और उसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है अमेजोन पे वो, और वो बिक रहा है क्योंकि वो चीपर है। तो टी वो शर्ट्स एक का यू थिंक दीज आर यू हैव टू हैव अ रिटर्न वाला बहुत ज्यादा चर्न रहता है इसका भी? ये तो आप प्रोडक्ट पे रहते हो। अगर आप प्रोडक्ट पे स्ट्रांग हो तो अभी तक मेरे को कोई जीरो रिटर्न आए हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट पे प्ले कर रहे हो कि हाँ भाई मैं थोड़ा लोअर क्वालिटी बेच रहा हूँ बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, तो फिर रिस्क रहता है, मेरा इतना महंगा प्राइसिंग है। आप ठीक तो है, मैं वेबसाइट पे बेच रहे हो ना, एक वो भी हाँ डिफरेंस हो जाता है। लाइक स्पेशली मिंत्रा पे आई थिंक बहुत ज्यादा होता है ये चीज कि रिटर्न बहुत हाई होता है। पीपल वेयर वन डे एंड देन दे रिटर्न, या फिर वो वैसे ही कुछ और ही रिटर्न कर देते हैं। बिकॉज आई वाज लुक वाचिंग सर्टेन ब्रांड्स जिनका जो पोस्ट कर रहे थे मिंत्रा से क्या रिटर्न आया, एंड रैंडम हाँ। चीजें आ रही हैं। सो वो ये अभी होता तो है। आपका वेबसाइट पे चल रहा है पूरा स्केल। ये है कि आप जब मार्केट प्लेटफॉर्म पे रहते हो तो थोड़ा सा स्केल अप में मुश्किल आती है, बट वो आपको स्टेबिलिटी दे जाता है मार्केट प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं। ये तो है। बाकी आप राइट प्लेटफॉर्म चुनो अपने लिए। अब मैं आज के टाइम पे अगर आप क्विक कॉमर्स में लिस्ट हो रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई रिटर्न ही नहीं है वहाँ पे फैशन में। एग्जैक्टली हाँ। क्विक कॉमर्स में लिस्ट हो जाओ, आप ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे अपना ब्रांड लिस्ट कर लो, थोड़ा मुश्किल है बट अच्छा पिकअप है वहाँ पे। ठीक है, आप हम्म। अमेजोन में हो जाओ, मिंत्रा पे भी हो जाओ, कहीं ना कहीं आप हो जाओ, और अपनी पॉलिसी आप पहले से ही रखो कि मैं नॉन रिटर्नेबल हूँ। ठीक है, वो आपको लिस्ट कर देंगे फैशन में, कोई दिक्कत नहीं है।
बस है वो कमीशन ज्यादा लेते हैं, बट दैट इज फाइन कि रिटर्न से अच्छा कि आपका आरओआई बढ़े, आपके कमीशन बढ़ जाए तो ठीक So है। this is a company you have founded. Uh, you have any co-founders in this? No. So just you and your team of 10-15 लोग जितने भी हैं साथ में, सारे रिमोटली काम कर रहे हैं ना? हाँ, सब रिमोटली काम कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सब अलग अलग लोकेशन से हैं, बहुत दूर दूर। चलो बढ़िया है, तो काफी सही है। ऑल द बेस्ट फॉर द डार्क स्टोर। जो भी देख रहा है, थैंक अगर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ व्यूज टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। यू। मतलब आई टेल यू द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड दिस वाज नेवर फॉर व्यूज, उसके लिए आई हैव अदर थिंग्स प्लान्ड आउट। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो फरवरी मार्च के आसपास विल एक्चुअली स्टार्ट पुशिंग आउट कंटेंट। बट अभी आई वाज ट्राइंग टू जस्ट probably get in touch again with people. लाइक हमारी आई थिंक 1 घंटा 11 मिनट का भी वैसे में बात नहीं हुई। हाँ, ये एक बहुत अलग एडवांटेज रहता है, होस्टिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल फ्रॉम माय नेटवर्क, एंड उनसे भी अगेन 1 घंटा 1-1 घंटा कहीं बहुत रेयर होता है कि you're able to actually talk to somebody for that long about their experiences. So I am trying to not pose this, like मेरे जो discussions in person भी हो रहे होते हैं, it is mostly about the other person's business, the entrepreneur, the preneur, whatever. So that is what I'm trying to do here. It's more of a personal experiment, come learning experience than पॉडकास्ट जो वायरल जाएगा। वो वायरलिटी में चेज कर भी देना, उसके लिए फिर वायरल कैसे चाहिए होते हैं। अभी वही यहाँ है, जितने अगर गेस्ट आ रहे कुछ हैं। अच्छा करना है ना तो मैंने हमेशा से सोचा था कि डोंट स्टार्ट विद ऑनलाइन, ट्राई टू बी कि ट्रैवल कर, घूम, ठीक है, और लोगों से ना उनके घर जाके मिल, रिकॉर्ड दैट, एक कैमरा ले लो छोटा सा, ठीक है, रखा, रिकॉर्ड किया अपनी एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन ऑन अ टी ओनली, चाय पे हाँ, बैठे 1 घंटे चर्चा हो गई, अगर हम यार सोचिए पता है फिजिकली नहीं। मेरा आइडिया है ये करने का। बट मैं आपको सही बताऊं अभी सीन क्या हो रहा है कि मेडॉक एट दिस पॉइंट वी आर सर्विसिंग अ गुड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, and I am building my team with respect to support, with respect to all of that. So operation इतना ज्यादा heavy रहता है कि for me to travel out of Jalandhar या आउट ऑफ दिस एरिया जहाँ मेडॉक के हॉस्पिटल्स है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरी अराउंड 3-4 मीटिंग्स भी थी अभी विद इन्वेस्टर्स एंड ऑल, एंड वो सारी की सारी भी इट वाज सपोज टू हैपन से फॉर एग्जांपल इन बैंगलोर इन मुंबई, बट आई डिड नॉट ट्रैवल बिकॉज आई हैड टू बी हियर, सो वो सारी ऑनलाइन हुई है। सो इट्स अ वेरी बिग लिमिटेशन राइट नाउ, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग दैट बेटर। दैट इज अ मेरा मेन प्रोसेस लिमिटर ही है। ओनली। हाँ। प्रोसेस बनाओ, ये क्रैक करो, फिर फ्री हो जाओ। प्रोसेस बताना बहुत बहुत स्लो काम है यार, बहुत स्लो हाँ, काम है। वो यही लाइक तो पॉइंट है कि एक हाँ, सीईओ की पूरी इंजीनियरिंग रिसर्च लग प्रोसेसेस, जाती है। एग्जैक्टली इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हम लोगों ने जितने बनाए हैं आज की डेट में, हम लोगों ने चालू करा था ये करना जनवरी, एसओपीस बनाना, सब कुछ करना, और अभी दिसंबर का महीना आ गया है, पूरा साल हो गया है। अब जाके चीजें थोड़ी सेटल हुई है, लाइक ऐसा सितंबर अक्टूबर में वी हैड वेरी क्लियर एसओपीज, चीजें एकदम लाइन में जा रही हैं, डेवलपमेंट सही से हो रहा है, सब हो रहा है। अब आज की डेट में वी स्टार्टेड कमर्शलाइजिंग 6-7 months ago, एंड इसमें वी गेटिंग 60-65 lakhs of ऐसा प्रॉपर रेवेन्यूज एंड ऑल। तो able to see कि this I have done with very very small team, very small team। मेरे 4 सेल्स वाले हैं, 4 सेल्स वाले मार्केट में घूम रहे हैं और मैं साथ में घूम रहा हूँ, दैट्स इट। सो आई एम सीइंग कि स्कोप है, जितने लोग मैं हायर करूंगा उतना सिस्टम क्रिएट होगा, उतने एसओपी बनेंगे, तो बस उसी पे काम चल रहा है। बाकी ये करना तो है, ऐसा घर जाके या फिर जैसे भी कहीं भी इनवाइट करके एक प्रॉपर इसको ऑफलाइन लेके जाना है। ऑनलाइन तो अभी बस टेम्परेरी है, दिस इज जस्ट टू स्टार्ट इट। सून वी विल मीट ऑफलाइन आल्सो। डन। तब सोल स्टोर अच्छा सा चल रहा होगा, ये डार्क स्टोर अच्छा से चल रहा होगा। आपका अभी जो नया स्टॉक रिलीज हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन दिस, लाइक अभी एंड ऑफ दिस मंथ राइट? हाँ, क्रिसमस पे या फिर न्यू ईयर पे हम कर देंगे। तो डिजाइन डिजाइन सब स्टार्ट हो रहे हैं अभी हाँ, क्या? वही, नई नई कैटेगरीज क्या क्या लॉन्च करना है, अलग अलग दिस इज अ बिजनेस ऑफ सप्लाई चेन इन अ लॉट ऑफ वेज राइट? अलग। लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन है पूरा।
डिजाइन तो एक तरफ ऑब्वियसली है ही, बट योर वो चैलेंज मोस्ट probably would वो be एक डिजाइन. हाँ वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो आपको क्रैक करना ही है। मतलब ये समझो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक तो करना ही है क्रैक, और कस्टमर हाँ केयर करना ही है क्रैक, ये दो तो अलग हाँ है ही। अब आपको हाँ. मार्केट में अलग होने के लिए और बिकने के लिए, सेल्सी होने के लिए दो चीजें अलग और क्रैक करनी है, दैट इज डिजाइन, क्वालिटी, और फिर उसके बाद फिर उस पे उसी के गेम्स पे आपको फिर मार्केटिंग करनी है मार्केटिंग. अपनी। और जी। मार्केटिंग नीड्स बी समथिंग एकदम जो हिट हो जाए. So you're also in the virality business. हाँ, हम आई ऑनेस्टली से कि आई एम लुकिंग फॉर वायरलिटी, क्योंकि वो Uh, जरूरी भी है, उसमें होती है, स्टैंडर्ड है कुछ नया नहीं है। ठीक है सर। let's see कि कैसे जाता है. All the best for your business and for your work that you're doing moving सेम टू forward. यू, सेम टू यू। चलिए. ओके, बाय।